Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today is our English literature turn. So today we shall read English literature in our today's class. And students, today we are going to read chapter 12 Thunder from the Sky of our English literature book as we discussed in our today's class. And students, in this chapter 12 Thunder from the Sky, today's our topics are, our first number topic is summary of the poem, and our second number topic is about the poet of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky. Okay, so all students, please pay partial attention in your class and listen to my words clearly, because today firstly we shall read and explain summary of this poem, and then we shall read about the poet of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky in our today's class. Okay, so all students, let's see chapter 12. Students, the name of the chapter 12 is Thunder from the Sky. Thunder, it's mean गड़गड़ाहट या बिजली. From means say, the sky, it's mean आसमान या आकाश. Okay, the name of the chapter 12 is Thunder from the Sky. It's mean आसमान से गड़गड़ाहट या आसमान से बिजली. Clear? Students, in this chapter 12 Thunder from the Sky, we shall talk about natural disaster. इस चैप्टर 12 थंडर फ्रॉम द स्काई, इट्स मीन आसमान से बिजली या आसमान से गड़गड़ाहट में नेचुरल डिसास्टर, इट्स मीन प्राकृतिक आपदा के बारे में रीड करेंगे. बिकॉज दिस चैप्टर 12 थंडर फ्रॉम द स्काई इज बेस्ड ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट. क्योंकि ये जो चैप्टर 12 है ना, थंडर फ्रॉम द स्काई, ये डिसास्टर मैनेजमेंट, इट्स मीन कि आपदा प्रबंधन पर आधारित है. क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड ओपन पेज नंबर 113 in your English literature book as we said. And students, in this poem we shall read that how we became helpless in front of natural disaster. कि natural disaster, it's been प्राकृतिक आपदा के सामने हम कैसे हेल्पलेस हो जाते, कितने मजबूर हो जाते, और ये नेचुरल डिसास्टर हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है, हमारे लिए हमारा कितना लॉस कर जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ दिस नेचुरल डिसास्टर, कि नेचुरल डिसास्टर होता क्या है. ओके, तो स्टूडेंट्स, नेचर की तरफ से जो प्रॉब्लम्स होती है उसे हम बोलते हैं नेचुरल डिसास्टर. ओके, जैसे साइक्लोन्स हो गया, चक्रवात हो गया, फ्लड्स हो गए, इट्स मीन बाढ़ हो गई, सुनामीज हो गई, एंड सो एंड. ओके, तो स्टूडेंट्स, साइक्लोन्स इट्स मीन चक्रवात, फ्लड्स इट्स मीन बाढ़, सुनामीज. ओके, और ऐसी जो थिंग्स होती हैं वो हमारी होती है नेचुरल डिसास्टर, इट्स मीन प्राकृतिक आपदा. ओके, डिस्ट्रॉय द लीव्स ऑफ मैसेज एंड दियर होम्स टू. ओके, तो ये जो नेचुरल डिसास्टर होती है, प्राकृतिक आपदाएँ होती है, साइक्लोन्स, फ्लड्स, सुनामी और ऐसी बहुत सी थिंग्स होती है, ये क्या करती है, ये हम ह्यूमन्स के लीव्स को, हमारे जीवन को और हमारे होम्स को बहुत ही हार्म पहुंचाती है. ओके, हमारे होम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे लाइफ पर इफ़ेक्ट करती है. ओके, बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करती है. एंड इज़ देयर एनी वे टू रिड्यूस दिस डिस्ट्रक्शन. ओके, इट्स मीन क्या कोई तरीका है कि हम इससे बच सकते हैं, नेचुरल डिसास्टर से, इट्स प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं. ओके, एंड लेट अस रीड अ पोम अबाउट सच एस डिसास्टर. ओके, लेट अस रीड अ पोम. चलिए कविता पढ़ते हैं अबाउट सच एस डिसास्टर, ऐसी एक डिसास्टर के बारे में. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड दिस पोम. The rain fell steadily at first from the sky that was dark and overcast. So we took out our umbrellas and raincoats. It's going to be a rainy day, said the weather forecast. But suddenly, without warning, the heavy rain became a big cyclonic storm. Thunder rumbled loud and scary, and as lightning flashed through the dark, angry clouds, the sky looked alarming and quite extraordinary. The rainwater quickly filled up the rivers and lakes till they overflowed it. Then the water surged into the town. It flooded streets and buildings and gushed into homes. It swept away cars and knocked trees down. The roads became rivers of swirling muddy water that carried away everything that they came across. The floods destroyed homes and buildings in my city and caused the people much suffering and great loss. I want to tell the rain, please try to be caring, gentle and kind whenever you come to visit us again. Don't bring us a storm or floods again. That will make all our efforts and hard work go in vain. Okay. Since the poet of this poem is Santini Govindan. Okay. So the poetess of this poem is Santini Govindan. Okay. So students, now I am going to explain summary of this poem. Okay. So let's see the summary of this poem. The rain fell steadily at first. Okay. Students, say the meaning of steadily. Okay. Steadily, it's mean we can say that in a regular and even manner. Okay, it's mean कि एक लगातार और समान तरीके से. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, द रेन फेल स्टेडली एट फर्स्ट. तो पहले क्या होता है कि जब बारिश होती है तो लगातार और एक समान तरीके से होती है. ओके, एंड फिर फ्रॉम द स्काई दैट वाज डार्क एंड ओवरकास्ट. स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ ओवरकास्ट. ओके,
ओवरकास्ट इट्स मीन मार्क्ड बाय अ कवरिंग ऑफ ग्रे क्लाउड्स डल, ओके, इट्स मीन कि ग्रे बादलों से ढके होने पर अंकित किया हुआ, इट्स मीन भद्दा, ओके, जो डल क्लाउड्स होते हैं ना, भद्दे जो बादल होते हैं उन्हें मार्क किया जाता है, उन्हें बोलते हैं ओवरकास्ट, क्लियर। फ्रॉम द स्काई दैट वाज डार्क एंड ओवरकास्ट इट्स मीन कि आसमान से, ओके, जो डार्क इट्स मीन कि अंधेरे वाले, ओके, काले और भद्दे जो बादल थे। सो वी टुक आउट आवर अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स, तो हमने क्या किया कि जब ऐसा लगा कि हाँ पहले तो बारिश हो रही थी, ओके, स्टेडली हो रही थी, लगातार हो रही थी, और जो क्लाउड्स थे वो डार्क थे, ओके, डार्क थे, इट्स मीन कि काले काले से थे, और ओवरकास्ट थे, इट्स मीन कि बादलों से ढके होने पर अंकित किया गया था, भद्दे थे, ओके। तो हमने क्या किया, सो वी टुक आउट अवर अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स, सो इसलिए वी मीन्स हमने टुक आउट, इट्स मीन कि बाहर निकालिए, ओके, टुक आउट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक आउट, ओके, टेक आउट मीन्स बाहर निकाला, टुक आउट मीन्स बाहर निकालिए, अवर मीन्स हमारे, अम्ब्रेलास इट्स मीन छाते, एंड मीन्स और रेनकोट्स इट्स मीन बरसाती कोट, ओके। तो हमने क्या किया, अपने अम्ब्रेलास इट्स मीन अपने छाते और बरसाती कोट्स बाहर निकालिए। इट्स गोइंग टू बी अ रैनी डे सेड द वेदर फॉरकास्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स आर द मीनिंग ऑफ फोरकास्ट, ओके, फोरकास्ट इट्स मीन की प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, इट्स मीन कि मतलब फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में जो एक कैलकुलेशन होती है, ओके, अनुमानित सूचना बोल सकते हैं कि भविष्य में होने वाले जो आयोजनों का की एक गणना होती है उसे बोलते हैं हम फोरकास्ट, इट्स मीन अनुमानित सूचना, ओके। तो जो वेदर फोरकास्ट था, मौसम के जो अनुमानित सूचना थी, ओके, उन्होंने कहा, सेड इट्स मीन कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ रैनी डे, ओके, क्योंकि कि आज एक रैनी डे होने वाला है, ओके, कि मतलब बरसात का दिन होने वाला है, बारिश होने वाली है, बट सडनली, लेकिन अचानक से, विदाउट वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, दी हैवी रेन, बहुत ही हैवी रेन होने लगी, बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बिकेम अ बिग साइक्लोनिक स्टॉर्म, और वो जो रेन थी ना वो एक बिग साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गई, ओके, बिग मीन्स बड़ी, साइक्लोनिक मीन्स चक्रवात, स्टॉर्म इट्स मीन तूफान, ओके। तो जो रेन हो रही थी वो एक मतलब बिना किसी चेतावनी के एक साइक्लोनिक इट्स मीन चक्रवात घूमता हुआ, ओके, एक बहुत ही बड़ा घूमता हुआ साइक्लोनिक स्टॉर्म चक्रवाती तूफान बन गया, ओके, एंड जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। थंडर रंबल्ड लाउड एंड स्कैरी, स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ रंबल दैट मेड अ कॉन्टिन्यूस डीप साउंड, ओके, इट्स मीन कि मेड अ कॉन्टिन्यूस डीप साउंड, इट्स मीन बहुत ही तेज गड़गड़ाहट की आवाज़, ओके। एंड स्टूडेंट्स हियर द मीनिंग ऑफ स्कैरी, स्कैरी मीन स्टूडेंट्स होते हैं डराने वाली। तो जब वो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, एक बहुत बड़ा सा चक्रवात तूफान आया, तो वो कैसा साउंड कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा कड़कड़ाहट का साउंड कर रहा था, बहुत ही डरावने वाला उसका साउंड था। एंड एस लाइटिंग फ्लैश्ड थ्रू द डार्क, ओके, एंग्री क्लाउड्स, ओके, एंग्री क्लाउड्स इट्स मीन क्रोधित बादल, एंग्री मीन्स गुस्से वाले, क्रोधित, क्लाउड्स मीन्स बादल। वी कैन से इन दिस पिक्चर दैट दिस इज एंग्री क्लाउड, ओके, ये एंग्री क्लाउड है ना, ओके। तो जो एंग्री क्लाउड्स थे इट्स मीन कि जो गुस्से वाले क्रोधित बादल थे, हियर्स ओनली वन, इधर सिर्फ एक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंग्री क्लाउड्स थे, स्काई में बहुत सारे क्रोधित बादल थे। तो उसमें से क्या हो रहा था कि उन गुस्से वाले क्रोधित डार्क इट्स मीन अंधेरे अंधेरे जैसे काले काले से बादलों से लाइट फ्लैश हो रही थी, इट्स मीन कि प्रकाश फ्लैश हो रहा था, ओके, प्रकाश बार बार आ रहा था, इट्स मीन कि बिजली चमक रही थी, ओके। द स्काई लुक्ड अलार्मिंग एंड क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और जो स्काई था ना, आसमान था, वो कैसे लुक कर रहा था, कैसे दिखाई दे दिया था, वो दिखाई दे रहा था अलार्मिंग, इट्स मीन कि बहुत ही अलार्मिंग, एंड क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इट्स मीन इट कि कुछ असाधारण, ओके। तो जब हम आसमान की तरफ देखते तो वह हमें कुछ ना कुछ मतलब संकेत दे रहा था, ओके, हमें अलार्म कर रहा था। अलार्मिंग मीन्स होता है कि संकेत दे रहा है, ओके, और कुछ असाधारण सा दिखाई दे रहा था, क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, थोड़ा सा असाधारण था, जैसे डेली क्लाउड्स होते हैं ना वैसा नहीं था, ओके। और बहुत ही डार्क था, अंधेरा था, काला काला से काले काले से क्लाउड्स थे, ओके, क्योंकि बारिश हो रही थी, एक बिग साइक्लोन स्टॉर्म था। द रेन वाटर क्विकली फिल्ड अप द रिवर्स एंड लेक्स, ओके। तो जो रेन वाटर था, बारिश का पानी था, उसने क्विकली इट्स मीन जल्दी से, फिल्ड अप इट्स मीन भर दिया, किसको, रिवर्स को, नदियों को, एंड लेक्स इट्स मीन झीलों को, क्लियर। तो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उसने बहुत ही जल्दी से नदियों को और झीलों को भर दिया।
टिल दे ओवरफ्लोडेड, और जब तक भरते रहे जब तक कि वो ओवरफ्लोडेड नहीं हो रहे। ओके, ओवरफ्लोडेड इट्स मीन इतना ज़्यादा भर जाना कि बहने लगना। ओके, सपोज दैट आप एक फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास में वाटर लेते ना, पानी लेते, और उसको उस ग्लास को वाटर से इतना ज़्यादा फिल कर दो कि वो जो वाटर था वो ग्लास से बाहर आने लगे, बहने लगे, उसे बोलते हैं ओवरफ्लोडेड। ओके, तो रेन वाटर ने जल्दी से नदियों को, झीलों को भर दिया, और इतना भर दिया जब तक कि वो बहने ना लगे। क्लियर? देन द वाटर सर्ज्ड इनटू द टाउन। स्टूडेंट्स, हेयर द मीनिंग ऑफ सर्ज्ड। ओके, सर्ज्ड इट्स मीन मूव टू फॉरवर्ड सडनली, इट्स मीन कि अचानक से आगे की ओर बढ़ना। ओके, जल्दी जल्दी बहना। और जब उन्होंने नदियों को, लेक्स को भर दिया रेन वाटर ने, बारिश के पानी ने, ओके, और इतना भरा कि वो जो जब तक ओवरफ्लो नहीं करने लगे तब तक भरते गए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि टाउन मीन्स होता है कस्बा, फिर वो जो वाटर था ना वो टाउन में, कस्बे में चला गया, अचानक से जल्दी से कस्बे की ओर बढ़ा। ओके, it flooded streets and buildings and gushed into homes. Okay, students, have the meaning of gust. G-U-S-H-E-D. Okay, gust it's mean कि चले जाना, घुस जाना जल्दी से। gust means होता है students rust. Okay, gust means rust. तो जब जो रेन वाटर था, ओके, वो जब टाउन में चला गया, ओके, तो उसने क्या किया, स्ट्रीट्स को, इट्स मीन गलियों को, और बिल्डिंग्स को, इट्स मीन इमारतों को भर दिया। और उसके बाद क्या किया उसने, वो स्ट्रीट्स में, इट्स मीन कि गलियों में और बिल्डिंग्स, इट्स मीन इमारतों में बाढ़ लेके आया। फ्लोड इट मीन्स बाढ़ लेके आया। ओके, और फिर उसने होम्स में, इट्स मीन घरों में घुस गया। ओके, घरों में घुसना शुरू कर दिया। इट स्वीप्ड अवे कार्स, उसने क्या किया, कारों को अपने साथ बहा दिया जो स्ट्रीट्स पे थी, गलियों में थी। एंड नॉक्ड ट्रीज डाउन, और जो ट्रीज थी ना, पेड़ थे, उनको गिरा दिया। क्लियर? दी रोड्स बिकेम रिवर्स ऑफ स्विलिंग मडी वाटर, जो रोड्स थी ना, जो सड़कें थी, वो बिकेम मीन्स बन गई। बिकेम इट सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम, बिकम मीन्स बनना, बिकेम मीन्स बन गई। क्या बन गई? रिवर्स इट्स मीन नदियाँ, ऑफ स्विलिंग मडी वाटर, इट्स मीन घूमते हुए गंदे पानी से भरी नदियाँ बन गई। ओके, जो रोड्स थी, वो जो सड़कें थी, वो गंदे पानी, घूमता हुआ गंदे पानी की नदियाँ बन गई। दैट कैरीड अवे एवरीथिंग दैट दे केम अक्रॉस, और उस रेन वाटर के रास्ते में जो कुछ भी आए ना, वो से अपने साथ बहाता गया। ओके, दी फ्लोड्स डिस्ट्रॉयड होम्स एंड बिल्डिंग्स इन माई सिटी। तो दी फ्लोड इट्स मीन बाढ़, डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। होम्स इट्स मीन घरों, एंड मीन्स और बिल्डिंग्स इट्स मीन इमारतों, इन मीन्स में, माई मीन्स मेरी, सिटी मीन्स शहर। ओके, दी फ्लोड्स डिस्ट्रॉयड होम्स एंड बिल्डिंग्स इन माई सिटी। तो बाढ़ ने मेरे शहर में घरों और इमारतों को डिस्ट्रॉय कर दिया, घरों और इमारतों को नष्ट कर दिया, उन्हें तोड़ दिया। ओके, उन्हें समाप्त कर दिया। एंड कॉस्ट द पीपल मच सफरिंग एंड ग्रेट लॉस। ओके, एंड मीन्स और कॉस्ट इट्स मीन कारण बन गया, दी पीपल इट्स मीन लोगों का, मच सफरिंग इट्स मीन बहुत अधिक पीड़ा का, एंड ग्रेट लॉस और बहुत ही ज़्यादा हानि का। ओके, अब क्या होता है कि जो फ्लोड था ना, जो बाढ़ थी, वो उसने लोगों को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई, बहुत ज़्यादा दर्द दिया, और उनके ग्रेट लॉस का कारण बन गया, उनकी बहुत ज़्यादा हानि का कारण बन गया, उनके पीड़ा का, उनका दर्द का कारण बन गया। ओके, आई वांट टू टेल द रेन। ओके, आई मीन्स मैं, वांट टू मीन्स चाहती हूँ, टेल मीन्स कहना, द रेन मीन्स बारिश से। आई वांट टू टेल द रेन, मैं बारिश से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू बी केयरिंग, जेंटल एंड काइंड। ओके, प्लीज़ मीन्स कृपया, ट्राई मीन्स कोशिश करिए, टू बी इट्स मीन बनने की, केयरिंग इट्स मीन देखभाल करने की, जेंटल इट्स मीन सज्जन, एंड मीन्स और काइंड मीन्स दयालु। ओके, तो आई वांट टू टेल द रेन, मैं बारिश से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू बी केयरिंग, जेंटल एंड काइंड, कि कृपया केयरिंग इट्स मीन दूसरों की देखभाल करने की, और सज्जन और दयालु बनने की कोशिश करिए थोड़ी। वेन एवर यू कम टू विजिट अस अगेन, जब भी आप हमारे यहाँ दोबारा घूमने आएंगे, ओके, विजिट करने आएंगे, ओके, डोंट ब्रिंग अस अ स्टॉर्म और फ्लोड्स अगेन। ओके, तो डोंट ब्रिंग अस, हमारे लिए प्लीज़ मत लाइएगा, क्या, अ स्टॉर्म, एक तूफान, और फ्लोड्स और बाढ़, ओके, अगेन, दोबारा। ओके, तो मैं बारिश से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ दूसरों की देखभाल बनने वाले सज्जन और दयालु बनिए, दयालु बनने की कोशिश करिए, और हमारे यहाँ जब भी दोबारा से घूमने आइएगा ना, विजिट करने आइएगा, तो प्लीज़ हमारे लिए एक तूफान और बाढ़ मत ले आइएगा। दैट विल मेक ऑल आवर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क गो इन वेन। ओके, दैट मीन्स जो विल मेक ऑल आवर एफर्ट्स, जो हमारे सारे प्रयासों को, एंड हार्ड वर्क, और हमारी मेहनत को, गो इन वेन, बर्बाद कर जाती है। ओके, तो जो कि हमारी सारी मेहनत को, हमारे एफर्ट्स को, हमारे प्रयासों को बर्बाद कर जाती है, उसे नष्ट कर देती है। ओके,
So students, the poet of this poem is Santini Govindan. Students, we have read and explained summary of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky in our today's class. And students, I hope you must have understood this poem, and I hope you have no problem in any line, in any word in this poem of chapter 12 Thunder from the Sky, which we have read in our today's class. Now students, we are going to read about the poet of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky. Okay, so let's read about the poet. Students, I think here should be right about the poetess, not about the poet. Okay, तो मुझे लगता है कि अभी about the poetess होना चाहिए, ना कि about the poet. Okay, because students, we know that we called a female poetess who writes poems. Okay, कि हम एक फीमेल को पोइटस बोलते, एक महिला को कवित्री बोलते हैं जो पोम राइट डाउन करती है. ओके, जो कविता लिखती है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अबाउट द पोइटेस. ओके, तो चलिए हम पोइटेस के बारे में, इस चैप्टर की जो कवित्री उनके बारे में रीड करते हैं. स्टूडेंट्स, द पोइटेस ऑफ दिस पोम ऑफ चैप्टर 12 थंडर फ्रॉम द स्काई सांथिनी गोविंदन. ओके, तो ये जो चैप्टर 12 है ना, थंडर फ्रॉम द स्काई, इसकी जो पोइटेस है, इसकी जो कवित्री है, वो है सांथिनी गोविंदन. सो लेट्स रीड अबाउट द सांथिनी गोविंदन. ओके, Santini Govindan, born on 20th March 1959, is an award-winning Indian writer. Okay, तो स्टूडेंट्स, सांतिनी गोविंदन जी का जन्म 20th मार्च 1949 को हुआ था, 20 मार्च 1959 को हुआ था. एंड स्टूडेंट्स, सांतिनी गोविंदन इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर. ओके, और ये एक अवार्ड विन करने वाली, अवार्ड जीतने वाली भारतीय लेखक है. And students, she has written over 40 books in English for children, which have been translated into many Indian languages. Okay, so students, सांतिनी गोविंदन जी 40 इट्स मीन 40 से भी ज़्यादा बुक्स राइट डाउन कर चुकी हैं इंग्लिश में बच्चों के लिए. ओके, विच वी हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी इंडियन लैंग्वेजेस, जिसे कई भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है. ओके, जिन्हें अनेक भारतीय भाषाओं में परिवर्तित किया जा चुका है. क्लियर? तो सांतिनी गोविंदन जी ने 40 से भी ज़्यादा बुक्स राइट डाउन की है इंग्लिश में बच्चों के लिए. ओके, और उन इंग्लिश में राइट डाउन हुई बुक्स को कई भारतीय भाषाओं में परिवर्तित किया जा चुका है. सी हैज़ आल्सो रिटन ओवर 300 आर्टिकल्स फॉर वेरियस इंडियन एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस मैगजीन्स. ओके, और स्टूडेंट्स, इन्होंने 300 आर्टिकल्स भी राइट डाउन कर चुकी है. ये 300 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स, 300 से भी ज़्यादा अनुच्छेद इन्होंने राइट डाउन किए हैं. किसके लिए? विभिन्न भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की पत्रिकाओं के लिए. ओके, एंड सिंस इन एडिशन टू ऑल हर राइटिंग्स, शी हैज़ आल्सो कंडक्टेड राइटिंग वर्कशॉप्स एंड थॉट क्रिएटिव राइटिंग इन मुंबई. ओके, और स्टूडेंट्स, इनके अगर राइटिंग का अगर एडिशन करते हैं ना, ओके, तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो जितनी भी इनकी बुक्स हैं, उनका एडिशन करके सी हैज़ आल्सो कंडक्टेड राइटिंग वर्कशॉप, ये एक राइटिंग का वर्कशॉप कंडक्ट करती है. एंड थॉट क्रिएटिव राइटिंग इन मुंबई, और मुंबई में क्रिएटिव राइटिंग थॉट करती है. इट्स मीन कि राइट करना सिखाती हैं. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड अबाउट द पोएटेस सांतिनी गोविंदन ऑफ दिस पोम ऑफ चैप्टर 12 थंडर फ्रॉम द स्काई, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड about the poetess Santini Govindan of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky. Okay, now students, I am going to describe your classwork and homework, so all students listen to my words clearly. Students, today's your classwork is that read and try to find out the summary of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky from your English literature book as well as and send me a voice recording here. It's your today's classwork. And students, today's your homework is that learn 8-line poem with its poetess name of chapter 12 Thunder from the Sky from your English literature book as well as it's your today's homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, read and try to find out the summary of this poem of chapter 12 Thunder from the Sky from your English literature book as well as and send me a voice recording here. Thank you.